हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम एचटेट पीजीटी इंग्लिश के 60 क्वेश्चंस करेंगे जो कि 5 जनवरी 2019 को हुआ था। तो आज हम लेवल 3 लेक्चरर इंग्लिश के पार्ट 4 के 60 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के पीजीटी इंग्लिश के 5 जनवरी 2019 को जो एचटेट एग्ज़ाम हुआ था उसके 60 क्वेश्चंस जो सिर्फ पीजीटी इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं उनको ये 60 क्वेश्चंस इंग्लिश के सॉल्व करने होते हैं सब्जेक्ट के। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो। पार्ट 4 इंग्लिश। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस 91 to 95 गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, आपको ये पैसेज जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चंस हैं 91 to 95 उनको जो है आपको आंसर बताने हैं उनके पैसेज पढ़ के। तो स्टूडेंट्स, ये पैसेज काफ़ी जो है लेंथी है, इसको पढ़ने में काफ़ी जो है टाइम लग जाता है। तो ये पैसेज यू कैन रीड ऑन योर ओन। नाउ आई विल टेल यू द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस नंबर 91 to 95। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 91, वाई इज अ लिटरेरी लाइफ मोस्टली एन अनहैप्पी वन? कि जो लिटरेरी लाइफ है वो ज़्यादातर अनहैप्पी वन क्यों है? ए ऑप्शन, बिकॉज अ जीनियस सफ़र्स द पेनल्टी ऑफ जीनियस and a talented person is full of chaos and worries. B, because such a life is beset with loneliness. C, because the monetary returns are frugal. D, because the readers are few and far between. So students, correct answer is option A, because a genius suffers the penalty of genius and a talented person is full of cares and worries. Now question number 92. Now students, question number 92. What are the ordeals awaiting the young author from his critics? Option A, the critics harass him. Option B, he has to run the gauntlet of his critics. Option C, he has to save his scalp as critics throw stones at him. D, the critics are sympathetic towards him. Students, option B, he has to run the gauntlet of his critics is the correct option. Now question number 93, what attitude should an author adopt in the face of bitter criticism? Now option A, he should defend himself. Option B, he should change his way of writing. Option C, he should suffer silently. Option D, he should take the criticism in the face and go his way unheeding. Option D, he should take the criticism in the face and go his way unheeding is our correct answer. Now students, question number 94, the attack of Gifford and Terry. A option, forced Keats to give up writing. B, expedited the death of Keats. C, brought Keats into the limelight. D, none of the above. Students, B option, expedited the death of Keats is the right answer. Now question number 95, the above passage is in the form of A oblique N. कि ऊपर जो ये पैसेज हमने पढ़ा है ये किस फॉर्म में है? ए बायोग्राफी है, बी एनेक्डोट है, सी एडवाइस है, डी सोलिलोक्वाय है। तो स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन एडवाइस जो है वो करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, पैसेज के क्वेश्चन करने के बाद अब हम आते हैं अपने लिटरेचर के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 96, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस इज ए लाइन फ्रॉम। कुछ कहते हैं कि संसार का अंत फायर में होगा, कुछ कहते हैं कि आइस में होगा। ये लाइन कौन सी पोएम से हैं? ए जॉन डन्स अ बर्न्ट शिप। बी विलियम ब्लेक्स द टाइगर। C. Emily Dickinson's Essays Denote That Fire Was. D. Robert Frost's Fire and Ice. So students,
Robert Frost's Fire and Ice is the correct answer. Some say the world will end in fire, some say in ice is a line from Robert Frost's Fire and Ice. Two Gentlemen of Verona by A.J. Cronin. Option A is about the conflict between loyalty to friends and submission to passion. B recounts the hard life chosen by two young boys so that they could pay for the treatment of their sister afflicted with tuberculosis. C is about two men who are hunted by a very relentless woman. D is a story about people who want to escape the dishonesty and politics of court life. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा 97th क्वेश्चन है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय एजो क्रॉनिन, ये जो एजो क्रॉनिन द्वारा लिखा गया टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है वो क्या करता है? तो स्टूडेंट्स ये करता है रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ चूजन बाय टू यंग बॉयज सो दैट दे कुड पे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर एफ्लिक्टेड विथ ट्यूबरक्लोसिस, जो कि ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Now question number 98, choose the word that is the antonym of the underlined word. यहाँ पर हमें एंटोनिम को सिलेक्ट करना है अंडरलाइन वर्ड के। हमारा सेंटेंस है पीपल टेंड टू अवॉइड लोकेशियस पीपल। ऑप्शन ए गैरुलस, ऑप्शन बी रेटिसेंट, ऑप्शन सी फ्लुएंट और ऑप्शन डी ग्लिब। तो स्टूडेंट्स, जो लोकेशियस है इसका एंटोनिम होगा रेटिसेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, इन हिज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक अ ट्रेवलॉग विक्रम सेठ रिकाउंट्स हिज विजिट टू टू सेक्रेड प्लेसेस इन काठमांडू। अपने एक्सट्रैक्ट हेवन लेक में, जो कि एक ट्रेवलॉग है, विक्रम सेठ क्या रिकाउंट करते हैं? वो रिकाउंट करते हैं काठमांडू की दो सेक्रेड प्लेसेस को जो उन्होंने विजिट की थी, और वो दो सेक्रेड प्लेसेस हैं स्टूडेंट्स पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ। ऑप्शन बी पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ जो है सही आंसर है। ए सारनाथ एंड सांची, सी स्वयंभूनाथ एंड कोपान और डी नगरकोट एंड नारायणहिटी, ये जो है हमारे इनकरेक्ट आंसर हैं। तो बी ऑप्शन पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, choose the correct option to fill in the blanks in the following sentences. Once there was dash wild horse. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा ए, once there was a wild horse. It was snowy white with dash long flowing mane. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आएगा ए, with a long flowing mane. फिर उसके बाद है dash horse could sometimes be seen. द हॉर्स आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। फिर है डैश लेट आफ्टरनून, यहाँ पर भी द आएगा। तो पहले दोनों में मैंने आपको बताया है ए, उसके बाद के दोनों में मैंने बताया है द। जस्ट बिफोर द सन वेंट डाउन, यहाँ पर भी द आएगा। और लास्ट का जो है देन इट वुड डिसअपियर इनटू डैश डार्क रॉकी केव, यहाँ पर आएगा ए। तो फर्स्ट दो में ए, सेकंड दो में जो है द, और फिफ्थ में द, और सिक्स्थ में ए, ये मिलते हैं हमारे को ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 101, विद द हेल्प ऑफ कोड्स मैच द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो ABCD ये हमारे को जो कोड दे रखे हैं और फिर हमें वर्ड्स और मीनिंग दे रखे हैं, कौन सा वर्ड कौन से मीनिंग से है ये हमें देखना है। तो ए जो चिकनरी है उसका मीनिंग होगा 3 वाला डिसीट। फिर बी जो है कोड डिलीट्रियस, ये जाएगा 1 हार्मफुल के साथ में। और फिर सी कोड जो जैजून है वो जाएगा डल के साथ। और लास्ट जो है आपका ट्राउंस, ये जाएगा 4th जो डिफीट के साथ में। मैं फिर बता देता हूँ आपको, चिकनरी जाएगा जो है 3rd डिसीट से, उसके बाद डिलीट्रियस जाएगा 1 हार्मफुल से, जैजून जाएगा जो है आपका 2 डल से, और ट्राउंस जाएगा आपका 4 डिफीट से। तो ए ऑप्शन में आपको ये सारे करेक्ट मिलते हैं, A3, B1, C2 और D4
ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। ए रोंडेल इज ए 13 लाइन्स वर्स फॉर्म विच कंसिस्ट्स ऑफ ए एन ऑक्टेव एंड ए क्विंटेट, बी 2 क्वार्टेंस फॉलोड बाय ए क्विंटेट, सी 3 tercets एंड ए क्वार्टेन, डी 3 क्वार्टेंस एंड एन एंड लाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बी ऑप्शन जो है 2 क्वार्टेंस फॉलोड बाय ए क्विंटेट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 103। ओड टू द वेस्ट विंड इज़ द मोस्ट नोटवर्दी एग्जाम्पल ऑफ। ओड टू द वेस्ट विंड ये पी.बी. शेली द्वारा लिखी गई पोएम है, एक ओड है, और ये नोटवर्दी एग्जाम्पल किस चीज़ का है? ए राइम रॉयल, बी ड्रामेटिक मोनोलॉग, सी टर्चारिमा और डी इकलॉग। तो स्टूडेंट्स ये जो ओड टू द वेस्ट विंड है पोएम, ये नोटवर्दी एग्जाम्पल है टर्चारिमा का, सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 104। इन इज एसे द आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन, अपने एसे जिसका नाम है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, उसमें अमर्त्य सेन क्या बताते हैं? ए ऑप्शन है आर्ग्यूज दैट लोकेशियसनेस इज ए न्यू हैबिट अमंग इंडियंस, बी says that Indians have always indulged in meaningless arguments, C does not take into consideration gender, caste and voice in the essay, D argues that in India there has been a long tradition of questioning the truth of ideas through discussion and dialogue। तो अमर्त्य सेन जो है अपने ऐसे द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में आर्ग्यू करते हैं दैट इन इंडिया, कि भारत में देयर हैज़ बीन ए लॉन्ग ट्रेडिशन, एक लंबी परंपरा रही है, ऑफ क्वेश्चनिंग द ट्रुथ ऑफ आइडियाज़, ट्रुथ ऑफ आइडियाज़ को क्वेश्चन करने के बारे में थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग, डिस्कशन और डायलॉग के द्वारा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 105 क्वेश्चन है हमारा। ए डैश इज वन हु हेट्स ऑल वुमेन, एक व्यक्ति जो सभी महिलाओं या स्त्रियों से नफ़रत करता है उसको क्या कहते हैं हम? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है। ए फिलैंथ्रोपिस्ट, बी मिसोजिनिस्ट, सी कॉस्मोपॉलिटन, डी मिसेंथ्रोप। तो स्टूडेंट्स अ पर्सन हु हेट्स ऑल वुमेन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 106। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड? 4 स्पेलिंग हमें दी हुई हैं, उनमें से एक स्पेलिंग गलत है। तो ए ऑप्शन में है एमेच्योर, स्पेलिंग ठीक है, बी बॉयंट, ये स्पेलिंग भी ठीक है, सी लाइजन, ये स्पेलिंग गलत है, और डी वैक्यूम, ये स्पेलिंग सही है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिसस्पेल्ड वर्ड ही हमसे पूछा गया है और लाइजन जो है यहाँ पर मिसस्पेल्ड है। नाउ 107। द फेमस लाइन Man serves the interest of no creature except himself is from। ये फेमस लाइन स्टूडेंट Man serves the interest of no creature except himself, ये कहाँ से है? ए लियो टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस से है, बी जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म से है, सी चार्ल्स डिकन्स ओलिवर ट्विस्ट से है, डी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मैन एंड सुपरमैन से है। तो स्टूडेंट्स ये जो फेमस लाइन है मैन सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ नो क्रीचर एक्सेप्ट हिमसेल्फ इज फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज बीइंग यूज्ड इन दीज लाइन्स? इन लाइन्स में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है? अर्थ फेल्ट द वुंड एंड नेचर फ्रॉम हर सीट, साइंग थ्रू ऑल हर वर्क्स गेव साइंस ऑफ वो। तो लिटरेरी डिवाइस में जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो हैं ए पर्सोनिफिकेशन, बी यूफेमिज्म, सी एल्यूजन और डी हाइपरबोले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं मानवीकरण। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 109। चूज़ द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ऑस्टियर। ऑस्टियर का हमें जो है सिनोनिम फाइंड आउट करना है, मीनिंग फाइंड आउट करना है, सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। तो ए ऑप्शन है लेनियंट, बी एम्पल, सी स्टर्न और डी जो है अनयूजुअल।
तो स्टूडेंट lenient का मतलब होता है उदार, बी एम्पल प्रचुर मात्रा में, सी stern कठोर और डी अनयूजुअल असाधारण। तो यहाँ पर ऑस्टियर का मतलब भी जो है कठोर से होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट से होगा, हार्ड से होगा। तो सी ऑप्शन जो stern है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब 110 क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ कोड्स गिवन बिलो मैच द फर्स्ट लाइन्स ऑफ द पोएम विद देयर पोएट। यहाँ पर हमें जो ABCD कोड दिए हुए हैं उसमें जो हमें क्या करना है, मैच करनी है फर्स्ट लाइन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स विद देयर पोएट्स, उनके पोएट से मैच करना है। तो स्टूडेंट्स ए कोड में जो पोएम दी हुई है वो है, उसकी लाइन है, टेस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। ये जो पोएम की लाइन है इसके पोएट कौन है? तो स्टूडेंट्स टेस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, ये जो लाइंस हैं ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम से ली गई हैं। तो ए जाएगा जो है फोर्थ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से। फिर बी कोड में है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, बहुत ही फेमस लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन से। तो बी जाएगा आपका थर्ड से रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। और सी है, एट 20 आई ट्राइड टू डाई एंड गेट बैक टू यू, ये आपके जो है सिल्विया प्लेथ की पोएम से लाइनें ली गई हैं। तो आपका सी जाएगा 2 से। और डी कोड है जो है, ट्रेड सॉफ्टली बिकॉज यू ट्रेड ऑन माई ड्रीम्स, ये जो है WB इट्स जो है उनकी पोएम से ये लाइनें ली गई हैं। तो आपका फिर आंसर इस हिसाब से हो जाता है A4, B3, C2, D1, ये मिलते हैं आपको ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, क्वीन गर्ट्रूड इन वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले इज़ द मदर ऑफ। क्वीन गर्ट्रूड जो है वो विलियम शेक्सपियर के एक प्ले में किसकी मदर हैं? ए मैकबेथ, बी एंटोनियो, सी हैमलेट और डी ओफेलिया। तो स्टूडेंट्स क्वीन गर्ट्रूड जो है, जो विलियम शेक्सपियर के वन ऑफ द प्लेज में है, वो मदर है हैमलेट की, और प्ले का नाम भी हैमलेट है। जो हैमलेट इज ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, और हैमलेट की ही मदर है क्वीन गर्ट्रूड। तो ऑप्शन सी हैमलेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज रिटन बाय। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखी थी स्टूडेंट्स? ए तिशानी दोषी, बी एने फ्रैंक, सी लुइस फिशर और डी श्री औरोबिंदो। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज रिटन बाय लुइस फिशर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2018 वॉज गिवन टू। जो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का 2018 का किसे दिया गया था? ए बॉब डायलन, बी एलिस मुनरो, सी डोरिस लेसिंग, डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दीज है, डी ऑप्शन। नाउ 114th क्वेश्चन, टू कंपोज और थिंक अप ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट इज। टू कंपोज और थिंक अप ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसी क्षण कुछ कंपोज करना या उसके बारे में सोचना, वो क्या होता है? ए रिफ्लेक्ट, बी आर्टफुल, सी ब्रेन वेव और डी इम्प्रोवाइज। तो स्टूडेंट्स टू कंपोज और थिंक अप ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 115th, द फ्रेज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मीन्स। एक फ्रेज हमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है और वो फ्रेज है ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, और इसका अभिप्राय क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ए ऑप्शन है एन इन्फेक्शियस एलिमेंट, एक इन्फेक्शियस बीमारी, बी एक करप्ट प्रेस्क्रिप्शन, एक गलत प्रेस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, सी ए स्नैग इन सिचुएशन और डी ए फार फेस्ट क्योर। तो स्टूडेंट्स द फ्रेज ए फ्लाई इन द
ऑइंटमेंट ये है ए स्नैग इन ए सिचुएशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, हु डज अमिताभ घोष राइट अबाउट इन द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड में अमिताभ घोष किसके बारे में लिखते हैं? ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स आगा शाहिद अली, बी वी.एस. नैपॉल, सी विक्रम सेठ और डी अरुंधति रॉय। तो स्टूडेंट्स अमिताभ घोष द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड में आगा शहीद अली के बारे में लिखते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन। जो हमें दी हुई हैं ब्रूटस और कैसियस की बातचीत में क्या लिटरेरी डिवाइस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ब्रूटस कहता है पीस, काउंट द क्लॉक। कैसियस कहता है द क्लॉक हैज स्ट्रिकन 3। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं लिटरेरी डिवाइस के, ए ओनोमोटोपिया, बी एनाक्रोनिज्म, सी एनालॉगी और डी एंटीथेसिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ब्रूटस और कैसियस की जो वार्तालाप है उसमें जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाक्रोनिज्म। बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 118, ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रो अप इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ। ऑल चिल्ड्रन सभी बच्चे एक्सेप्ट वन सिवाय एक के ग्रो अप बड़े होते हैं, ये ओपनिंग लाइन किसकी है? ए लिटिल वुमेन बाय लुइजिया एम एलकॉट, बी अन्ना करेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय, सी डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकन्स, डी पीटर पैन बाय जेम्स बैरी। तो स्टूडेंट्स ये ओपनिंग लाइन है पीटर पैन की जो कि जेम्स बैरी के द्वारा लिखा गया है। तो डी ऑप्शन पीटर पैन बाय जेम्स बैरी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, फॉकनर्स एज आई ले डाइंग, T.S. Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock and Toni Morrison's Beloved are examples of which literary techniques? तो फॉकनर्स का एज आई ले डाइंग, T.S. एलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड टॉनी मॉरिसन्स बिलवेड आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच लिटरेरी टेक्निक? ए फैंटेसी, बी ड्रामेटिक मोनोलॉग, सी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और डी जो है मेमोयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लिटरेरी टेक्निक है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 120, fill in the blanks with the options provided. After detailed discussion, we came dash the conclusion that there was no necessity dash fencing the garden. After detailed discussions के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गार्डन को फेंसिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो स्टूडेंट्स जब हम किसी कंक्लूजन पर पहुँचते हैं तो इंग्लिश में होता है केम टू द कंक्लूजन एंड दैट देयर वाज नो नेसेसिटी ऑफ, और की आवश्यकता नहीं थी किसकी, गार्डन को फेंसिंग करने की। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन टू और ऑफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 120 के जो अदर ऑप्शंस हैं, ए में टू, सी में एट और टू और डी में ऑन और फॉर, ये रॉन्ग है। बी ऑप्शन टू और ऑफ जो है वो सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, चूज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक मॉडल है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है कि उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जो मॉडल अंडरलाइन कर रखा है वो है मस्ट। सेंटेंस है हमारा, इट मस्ट बी हार्ड टू वर्क 60 आवर्स ए वीक, कि हफ्ते में 60 घंटे काम करना काफ़ी कठिन होगा या काफ़ी कठिन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मस्ट है वो किस सेंस में यूज किया गया है ये हमसे पूछा गया है। ए नेसेसिटी, क्या वो आवश्यकता के रूप में है? बी प्रोबेबिलिटी, क्या वो संभावना के रूप में है? सी पॉसिबिलिटी, यहाँ भी संभावना है। डी इंटेंशन, लेकिन यहाँ पर जो मस्ट का स्टूडेंट्स यूज हुआ है वो प्रोबेबिलिटी के रूप में यूज हुआ है। तो मस्ट का जो यहाँ पर मीनिंग निकल कर आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी। इट मस्ट बी हार्ड टू वर्क 60 आवर्स ए वीक, यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय द नोबेल प्राइज विनर काजुओ इशिगुरो, कि कौन सा जो नॉवेल जो है
लिखा नहीं गया है नोबेल प्राइज विनर काजुओ इशिगुरो के द्वारा। ए रिमेन्स ऑफ द डे, बी द बरीड जायंट, सी नेवर लेट मी गो और डी पेल फायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी पेल फायर, डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 123, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय D.H. लॉरेंस। कि जो यहाँ पर हमें नॉवेल्स दिए हुए हैं, फिर हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नॉवेल D.H. लॉरेंस के द्वारा नहीं लिखा गया है, कि कौन सा नॉवेल D.H. लॉरेंस के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो वो जो नॉवेल है स्टूडेंट, बताने से पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए द प्लूम्ड सर्पेंट, बी एरन्स रॉड और सी द वर्जिन एंड द जिप्सी। तो स्टूडेंट्स द प्लूम्ड सर्पेंट, आयरन्स रॉड्स और द वर्जिन एंड द जिप्सी, ये तीनों तो लिखे गए हैं D.H. लॉरेंस के द्वारा, लेकिन जो नहीं लिखा गया है वो है पावर एंड द ग्लोरी, सी ऑप्शन पावर एंड द ग्लोरी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, द 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle, and what rough beast, its hour come round at last, slouches toward Bethlehem to be born. These are the last line of the poem by W.B. Yeats. A the bronze head, B an Irish airman foresees his death, C the second coming, D the wild swans at cool. So students, these lines are from W.B. Yeats poem The Second Coming, C option is correct. Now 125, which of the following is the hero in R.K. Narayan's The Guide। R.K. नारायण के जो गाइड जो नॉवेल है उसमें से हीरो कौन है निम्नलिखित ऑप्शंस में से, ये हमसे पूछा गया है। ए चंद्रन रॉन्ग ऑप्शन है, बी जगन रॉन्ग ऑप्शन, डी रमन ये भी रॉन्ग ऑप्शन। तो R.K. नारायण का जो फेमस नॉवेल था द गाइड, उसका हीरो था राजू, राजू द गाइड। तो इस पे फिल्म भी बनी हुई है द गाइड। तो राजू जो है वो मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का। राजू और रोजी के बारे में आपने सुना होगा। तो ऑप्शन सी राजू करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, स्टेट द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका फंक्शन बताना है कि वो क्या कार्य कर रहा है यहाँ पर। तो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज, जो घटनाएं घटनी होती हैं उसके बारे में हमें पहले ही पता लग जाता है कि क्या घट सकता है। तो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो, तो कमिंग जो है वो यहाँ पर क्या है। ए जीरंट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कास्ट, बी प्रेजेंट पार्टिसिपल मॉडिफाइज द नाउन इवेंट्स, सी मेन वर्ब, डी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वर्ड कमिंग जो अंडरलाइन है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये मॉडिफाई करता है नाउन इवेंट्स को। तो जो अंडरलाइन वर्ड है कमिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका फंक्शन यहाँ पर ये है कि ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन इवेंट्स को, बी ऑप्शन करेक्ट है। 27, विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स मैच द बिगिनिंग ऑफ ईच ईडियम विथ इट्स एंडिंग। कोड दिए हुए हैं ABCD, जो ईडियम है उसकी बिगिनिंग दी हुई है और उसका एंडिंग जो है वो 1 2 3 4 में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन में जो टू मूव से जो ईडियम स्टार्ट हो रहा है उसकी जो एंडिंग होगी वो होगी हेवन एंड अर्थ। ईडियम क्या होता है, टू मूव हेवन एंड अर्थ। तो ए जाएगा आपका 4 के साथ में। उसके बाद जो है टू प्ले आपका स्टार्टिंग है ईडियम की, इसकी एंडिंग होगी डक्स एंड ड्रैग्स से। तो ईडियम बन जाएगा टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, बी जाएगा 3 से। सी आपका स्टार्ट हो रहा है ईडियम टू पुट से और इसकी एंडिंग होगी ए स्पोक इन द व्हील से। तो आपका सी जाएगा 2 से। और फिर डी है टू टेक से स्टार्ट हो रहा है आपका ईडियम और ये जाएगा 1 से, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं कि A4, B3, C2 और D1
ये मिल रहे हैं आपको ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, आई कुड डू दिस फॉर एवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल हैं आई कुड डू दिस फॉर एवर, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है स्टूडेंट? ए हाइपरबोले, बी एनाफोरा, सी यूफेमिज्म और डी आयरोनी। सो स्टूडेंट्स, आई कुड डू दिस फॉर एवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले, जिसको कहते हैं अतिशयोक्ति। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 129th क्वेश्चन, द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 कोर्स इज टाइटल्ड एज। क्लास 12th की एक टेक्स्ट बुक होती है स्टूडेंट्स, कोर कोर्स की होती है, उसका टाइटल क्या है? ए बी हाइव, आपको पता है क्लास 9th में लगती है। बी हॉर्नबिल, क्लास 11th में लगती है। सी फ्लैमिंगो, ये लगती है क्लास 12th में, ये आपका आंसर है। और डी फर्स्ट फ्लाइट, ये क्लास 10th में लगती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लैमिंगो। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय चौसर। चौसर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं लिखा गया है? ए द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, बी द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, सी द हाउस ऑफ फेम, डी द बुक ऑफ द डचेस। तो स्टूडेंट्स, बी द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, सी द हाउस ऑफ फेम और डी द बुक ऑफ द डचेस, ये तीनों के तीनों चौसर के द्वारा लिखे गए हैं। ए जो है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ये चौसर के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ए ऑप्शन द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस हमारा सही है। ए द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। 131, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? ए इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स आवर हाउसेस एंड ड्राइव्स आवर मशीनरी, सही है। बी वाटर चेंज इनटू आइस व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 32 डिग्री एफ यानी फ़ारेनहाइट। सी वी सी विद आवर आइज, हियर विद आवर ईयर्स एंड स्मेल विद आवर नोज। डी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो स्टूडेंट्स, ए सी और डी तीनों ठीक हैं। बी जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि चेंज्ड के जगह पे चेंजेस आएगा, तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ 132, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए प्रोमिनेंट राइटर ऑफ हार्लेम रेनेसा। हार्लेम रेनेसा का कौन सा जो है प्रोमिनेंट राइटर था? ए ऑप्शन है टोनी मॉरिसन, बी लैंगस्टन ह्यूज, सी अमीरी बर्का और डी एलिस वॉकर। तो करेक्ट आंसर है बी लैंगस्टन ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 133, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस हमें दिए हुए हैं ऑप्शन में, उनकी करेक्ट चॉइस हमें भरनी है। द पास्ट डिकेड हैज अपसेट मैनी प्री कंसेप्शंस अबाउट डेवलपमेंट। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा अबाउट, एंड दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू बी ओवरली डेफिनेट अबाउट। सेकंड में भी अबाउट आएगा। वॉट द नेक्स्ट डिकेड हैज इन स्टोर, वर्चुअली एवरी केस ऑफ सक्सेसफुल डेवलपमेंट। थर्ड में आएगा ऑफ, इन्वॉल्व जब प्रायर इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी। फोर्थ में आएगा इन, एंड एसेस टू प्रोडक्टिव वर्क। फिफ्थ में आएगा टू। तो स्टूडेंट्स, ये मिलते हैं आपको ऑप्शन सी में। फर्स्ट टू में अबाउट, थर्ड में ऑफ, फोर्थ में इन और फिफ्थ में टू। सी ऑप्शन करेक्ट है। 134, द सेंट्रल थीम ऑफ दिस फेमस पोएम बाय टेनिसन इज द pursuit of knowledge and experience. The central theme of this famous poem by Tennyson is the pursuit of knowledge and experience. A. The Lotus Eaters, B. Tears, Idle Tears, C. Ulysses, D. The Charge of the Light Brigade. Correct option is option C, Ulysses. Now question number 135, on the basis of code given below, match the following four references with the poem in which they occur. ए है स्टूडेंट रेफरेंस में, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये है स्टूडेंट्स स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ये जो लाइनें हैं एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये ली गई हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग से। तो ए जाएगा आपका 4 से। बी है फॉर द रेन इट रेनथ एवरी डे। तो स्टूडेंट्स, ये लाइनें ली गई हैं 12th नाइट से, तो आपका बी जाएगा 3 से। सी कोड है आपका वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, ये जाएगा स्टूडेंट आपका 2 से। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड
प्रूफ्रॉक से। वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, ये लाइन्स ली गई हैं, ये रेफरेंस जो है ये है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से। और डी में जो रिफ्रेन है वो है नेवर मोर, ये रेवन पोएम से ली गई हैं। तो स्टूडेंट्स आपका डी जाएगा 1 से, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा A4, B3, C2, D1, ये आप पाते हैं ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 136, द एक्सपीरियंसेस दैट अशोका मित्रन नरेट्स इन हिज बुक माई ईयर्स विथ बॉस रिलेट टू A. being an advisor and friend to President Roosevelt, B. working at Gemini Studio Chennai, C. experiencing untouchability, and D. subjection of animals and willfulness of humans। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है वर्किंग एट जेमिनी स्टूडियो चेन्नई, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइटर ऑफ एब्सर्ड प्लेज, निम्नलिखित में से कौन सा एब्सर्ड प्लेज का राइटर नहीं है। ए. यूजीन आयोनेस्को, बी. जीन जेनेट, सी. एडवर्ड एल्बी, डी. जॉन ऑसबॉर्न। तो यहाँ पर हमारे को जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें से ए. यूजीन आयोनेस्को और बी. जीन जेनेट और सी. एडवर्ड एल्बी, ये तीनों तो एब्सर्ड प्लेज के राइटर हैं, लेकिन जो डी है जॉन ऑसबॉर्न, ये एब्सर्ड प्लेज का राइटर नहीं है, तो डी जॉन ऑसबॉर्न हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 138, आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज ए पोएम बाय एड्रियन रिच अबाउट, आंट जेनिफर्स टाइगर एक पोएम है एड्रियन रिच के द्वारा लिखी हुई, वो किस बारे में है। ए. द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल, बी. कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, सी. फियर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, डी. घोस्ट्स एंड सुपरनैचुरल बीइंग। तो स्टूडेंट्स आंट जेनिफर टाइगर इज ए पोएम बाय एड्रियन रिच अबाउट कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ के कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 139, आइडेंटिफाइड द वर्ड विथ 2 syllables, A. development, B. foundation, C. knowledge, D. education। C. knowledge is the correct answer students। Now 140, one is not born a woman, one becomes one is a view proposed by, one is not born a woman, कोई भी जो है यहाँ पर वुमेन के रूप में बॉर्न नहीं होती, वन बिकम्स वन, उसको वुमन बनना होता है। इज ए व्यू प्रपोज्ड बाय, ये किसके द्वारा व्यू दिया गया है। ए. साइमन डी ब्यूअर, बी. बेल हुक्स, सी. माया एंजेलो, डी. ल्यूस इरीगेरी। तो साइमन डी ब्यूअर जो है वो हमारा राइट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 141, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, हमें जो है करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस है हमारा इट इज़ सेड दैट दे नो इट, ऐसा कहा जाता है कि वे इसे जानते हैं। ए में है इट इज़ बीइंग सेड दैट दे नोन इट, बी. दे सेड इट दैट इट वाज नोन बाय देम, सी. एवरीबडी सेज दैट इट इज़ नोन टू देम, डी. दैट दे नो इट हैज़ बीन सेड बाय देम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको देखना है नो से, नो जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब नो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इच एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगते हैं, तो इज़ नोन आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरीबडी सेज दैट इट इज़ नोन टू देम, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 142, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट ऑप्शन से। सेंटेंस है नो सूनर डिड आई स्टेप आउटसाइड डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। ऑप्शंस हैं ए देन, बी देन, सी वैन और डी ओनली। तो स्टूडेंट्स जब भी आपका सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, THAN। तो यहाँ पर नो सूनर देन जो है को रिलेटिव कंजंक्शन हो जाते हैं आपके, तो नो सूनर डिड आई स्टेप आउटसाइड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, THAN आएगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। THAN देन होता है बाद में, और यहाँ पर जो देन है वो तुलना के लिए भी यूज होता है से, जिसका अर्थ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है तभी या उसी समय। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकला स्टेप आउटसाइड, तभी वर्षा शुरू हो गई, यानी उसी समय वर्षा शुरू हो गई, तो बी ऑप्शन देन THAN जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 143, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस,
निम्नलिखित वाक्य में हमें एडवर्ब क्लॉज को पहचानना है। Whoever wishes can send whomever they like, whatever they like, whenever they like। तो यहाँ पर जो आपका जो एडवर्ब क्लॉज होगा, क्या whoever wishes होगा, ए ऑप्शन में दे रखा है जो, बी whomever they like होगा, सी whatever they like होगा, डी whenever they like होगा। तो स्टूडेंट्स whenever से जो सेंटेंस whenever से जो स्टार्ट होता है वो आपका एडवर्ब क्लॉज होता है। तो डी whenever they like is the adverb clause in the following sentence। Now question 144, which part of the following sentence is grammatically incorrect? कौन सा पार्ट जो है इस सेंटेंस में जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? The facts in that complex case is questionable। तथ्य उस कॉम्प्लेक्स केस में वो क्वेश्चनेबल है, यानी जिस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। ए द, बी इन, सी दैट और डी इज। तो यहाँ पर फैक्ट्स के साथ स्टूडेंट इज नहीं आ सकता, आर आना चाहिए। तो इज जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो डी ऑप्शन इज जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन 145, मीराबेल एंड मिलामेंट आर कैरेक्टर्स फ्रॉम। दो कैरेक्टर हैं स्टूडेंट्स, मीराबेल एंड मिलामेंट। ये आपको कहाँ मिलते हैं? ए कॉन्ग्रेस द वे ऑफ द वर्ल्ड में, बी शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस में, सी मार्लोस द जू ऑफ माल्टा में और डी थॉमस किड के स्पेनिश ट्रेजेडी में। तो स्टूडेंट्स मीराबेल और मिलामेंट जो हैं इनके बारे में आपने एमए जब की होगी तो पढ़ा होगा, विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ आपको ये कैरेक्टर्स मिलते हैं विलियम कॉन्ग्रीव के द वे ऑफ द वर्ल्ड में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 146, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। ए है ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू नॉट टू स्पॉइल द कारपेट, बी ही आस्क्ड टू हिज सर्वेंट नॉट स्पॉइल द कारपेट, सी ही आस्क्ड हिज सर्वेंट डू नॉट स्पॉइल द कारपेट, डी ही आस्क्ड हिज सर्वेंट नॉट टू स्पॉइल द कारपेट। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपका करेक्ट सेंटेंस है वो है डी ऑप्शन का, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट नॉट टू स्पॉइल द कारपेट। क्योंकि ये सेंटेंस अगर हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में ऐसे बनेगा, ही सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट स्पॉइल द कारपेट। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया और डू नॉट को हमने चेंज कर दिया नॉट टू में। तो क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस था, उसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किससे ज्वाइन किया, नॉट टू से। टू नॉट नहीं होता स्टूडेंट्स, नॉट टू होता है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट नॉट टू स्पॉइल द कारपेट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 147, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए राइटर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। निम्नलिखित में से कौन सा राइटर नहीं है इंडियन डायस्पोरा का? ए विक्रम चंद्रा, बी शोभा डे, सी भारती मुखर्जी, डी रोहिंटन मिस्त्री। तो स्टूडेंट्स शोभा डे इज नॉट ए राइटर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, मार्कस नेटन सेज इन हिज पोएम चाइल्डहुड दैट दिस स्टेज ऑफ लाइफ इज। मार्कस नेटन कहते हैं अपनी पोएम चाइल्डहुड में दैट दिस स्टेज ऑफ लाइफ इज, कि लाइफ का ये स्टेज है। ए ऑप्शन आइदर इन हेल और हेवन, बी समवेयर बियॉन्ड ज्योग्राफी, सी हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, डी इन द आर्ट ऑफ लव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 149, आई एम वन who loved not wisely but too well is a line from Shakespeare's. A. Hamlet, B. Othello, C. Macbeth, D. King Lear। तो स्टूडेंट्स आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, मैं वो हूँ जिसे जो है प्यार किया गया था न कि वाइजली बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से। तो ये लाइनें हैं शेक्सपियर के ओथेलो से, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 150, डैश इज ए फीलिंग ऑफ लिस्टलेस, वेरीनेस रिजल्टिंग फ्रॉम सैचिटी, बोर्डम और इनएक्टिविटी। ए एनिमेशन,
बी कंटेंटमेंट, सी विगर और डी ऑन वे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑन वे, जिसका मतलब होता है विरक्ति। तो ऑन वे इज ए फीलिंग ऑफ लिस्टलेस वेरीनेस रिजल्टिंग फ्रॉम सेचिटी, बोर्डम और इनएक्टिविटी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज हमने एचटेट क्वेश्चन पेपर 2019 लेवल 3 लेक्चरर इंग्लिश के पार्ट 4 के 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।